Hello friends, so today I am here with the video regarding cadre posts in the Indian Navy. So before moving ahead, so please subscribe, share the channel among the friends and relatives who are looking for the job and who want to serve the nation through Indian Navy. And please press the bell icon also, because on the routine basis, on the daily basis, we are going to update you regarding many of the jobs in many of the government and the non-government sectors. So today, Indian Navy is inviting the online applications for the grant of Short Service Commission, you can say SSC, commencing from June 2025. Again, Indian Navy is inviting the online applications for the grant of SSC, Short Service Commission, commencing June 2025, and the last date to apply is 29 September 2024. Again, the last date 29 September 2024. So be careful and please don't skip the video. Step by step, I am going to explain each cadre, the eligibility criteria, what will be the minimum qualification, what will be the age criteria, and the number of vacancies or the number of posts, and for the particular gender, how many vacancies are reserved or maximum. So first thing, all these cadre posts are for only unmarried men and unmarried women. You must be Indian, you must be unmarried, and you must have the age within the criteria given. For every cadre, the different age criteria is there, the different qualifications are there. So one by one I am going to explain. सभी कैडर पोस्ट के लिए इन टोटल देर आर 250 पोस्ट 250 पोस्ट है यहाँ पे, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट, अलग अलग क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सभी कैडर के लिए अलग अलग हैं. फिर से बता रहे हैं कि लास्ट डेट है अप्लाई करने का 29 सितंबर 2024, और ये आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं. और ऑनलाइन कहां से अप्लाई होना है, कहां से आपको फॉर्म मिलेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियोस में बताया जाएगा. सबसे पहले आप आते हैं हम जनरल सर्विसेज. जनरल सर्विसेज है, साथ में हाइड्रो कैडर, और जनरल सर्विसेज की मैक्सिमम पोस्ट है आपके पास 56, और इट इज ओपन फॉर बोथ. It is open for both unmarried men and unmarried women. 56 posts are there, and maximum of 15 vacancies are there for women. Out of 56, maximum 15 are there in general services are for women, and in hydro, out of 56, 6 vacancies are for hydro, and out of these 6, 2 are for women. And age limit, you must born between 2nd July 2000 to 1st Jan 2006. Again, 2nd July 2000 to 1st Jan 2006. And the qualification, you must possess Bachelor in Engineering or BTech degree with minimum 60% marks. अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जनरल सर्विसेज में और हाइड्रो कैडर में, जिसकी 56 पोस्ट है, ओपन है, मैन और वुमेन दोनों अनमैरिड होनी चाहिए, और आपकी एज जो है वो 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जन 2006 तक होनी चाहिए. और बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव, मीन टू से अगर कोई 2 जुलाई 2000 को पैदा हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, या कोई 1 जन 2006 को जिसका बर्थ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. और आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीई या बीटेक विद 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए. सेकंड कैडर है पायलट. इसकी 24 वैकेंसीज हैं,
और 24 वैकेंसीज दोनों ही मेन एंड वीमेन के लिए ओपन है, और 7 वैकेंसी जो हैं वो वीमेन के लिए इन मैक्सिमम रिजर्व है। 24 टोटल, 7 अनमैरिड वीमेन के लिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 2 जुलाई 2001, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं, यानी कि 2 जुलाई 2001 को जिनका बर्थ है और 1 जुलाई 2006 को जिनका बर्थ है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और क्वालिफिकेशन अगेन बीई और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन, BE or BTech in any discipline with 60% marks, and also in addition BE और BTech में तो 60 चाहिए, लेकिन क्लास 10th और क्लास +2 में टोटल एग्रीगेट भी 60 होना चाहिए मिनिमम। ये नहीं कि +1 में +2 में 60% से लो है और यहां पे आपकी बीटेक जो है वो 80% से है, तब भी एलिजिबल नहीं है। यानी कि 10th 60%, +2 60%, इंजीनियरिंग 60% मिनिमम। और साथ में एक और कंडीशन है, 60% इन इंग्लिश इन 10th एंड +2। अगर आपके 10th में 80% है लेकिन इंग्लिश में 55 है तो भी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगेन थोड़ा सा कंडीशनल है, आपके 10th में 60% होने चाहिए मिनिमम और इंग्लिश में भी 60% मिनिमम होने चाहिए। +2 60% aggregate and in English separately minimum 60%, in BE और BTech 60%। तो ये था आपका पायलट कैडर के लिए। अगला कैडर आता है आपके पास नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स का, जिसको एयर क्रू कहते हैं, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स, एयर क्रू। और इसकी टोटल वैकेंसीज हैं 21, open for both unmarried men and unmarried women, and out of 21 6 vacancies are there for women। age criteria रहेगा, you must born between 2 July 2001, date is inclusive, to 1 July 2006, this date is also inclusive। The qualification criteria same, BE or BTech in any discipline with 60%, class 10th aggregate 60%, English also minimum 60%, +2 aggregate 60%, English also minimum 60%. And the next category is air traffic controller. Air traffic controller, the maximum vacancies are 20, open for both unmarried men and unmarried women, and you must born between 2 July 2000, 2 July 2000 to 1 July 2004, and the qualification again the same, BE, BTech in any discipline with 60%, class 10th total aggregate 60%, English minimum 60%, +2 total aggregate minimum 60, and English separately minimum 60%. The next, logistics, the number of vacancies are 20 and open for both men and women, and 6 vacancies are there in maximum for women। age criteria 2 July 2000 to 1 Jan 2006 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डेट्स आर इंक्लूसिव। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है BE, BTech in any discipline with first class mean to say 60% और प्लस, MBA with first class, जो MBA कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और BSc, BCom, BSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने BSc किया है, ग्रेजुएशन किया विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद PG डिप्लोमा, इसके साथ PG डिप्लोमा भी होना जरूरी है। BSc, BCom, BSc IT जिन्होंने किया है उसके साथ PG डिप्लोमा फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन ये भी होना जरूरी है, मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि आपका PG डिप्लोमा जिनका साथ में है वही एलिजिबल होंगे अलॉन्ग विद फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट के साथ आपका PG डिप्लोमा भी
होना चाहिए। और एक और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एमसीए, एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास। वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमसीए या एमएससी आईटी फर्स्ट क्लास के साथ किया है। बता दिया है पहले ही 20 पोस्ट इसके लिए हैं और आपका एज लिमिट होना चाहिए 2 जुलाई 2000 से 1 जन 2006 तक, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। और नेक्स्ट आते हैं नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर NAIC, और इसके लिए वैकेंसीज हैं 16, ओपन फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, एंड डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी फ्रॉम 2 जुलाई 2000 to 1 जन 2006, वो डेट्स इंक्लूसिव। एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा आपका BE BTech with minimum 60% marks in mechanical with automation, electrical and electronics, microelectronics, instrumentation, electronics and communication, electronics and telecommunication, instrumentation and control engineering, industrial engineering, applied electronics and instrumentation, computer application, metallurgical, chemical, material science, aerospace, aeronautical engineering, or the postgraduate degree in electronics or physics. Candidate must have 60% aggregate in 10th and plus 2 and 60% separately minimum in English in 10th and in plus 2. Then there is the next cadre, education branch. In education branch, number of vacancies are in total 15. First 7, the qualification criteria is 60% marks in MSc Maths or operational research with physics in BSc. BSc में आपके पास फिजिक्स होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आपके MSc में होने चाहिए। सेकंड है 60% मार्क्स इन MSc फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ्स इन BSc। BSc में मैथ्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी फिजिक्स में हो सकती है और मिनिमम 60% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या 60% मार्क्स इन MSc केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन BSc। BSc में फिजिक्स हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो है केमिस्ट्री के साथ है, और तीनों में ही पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में है, फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, आपकी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और 7 वैकेंसीज हैं इसके लिए, और बोथ अनमैरिड मैन एंड वीमेन के लिए ये ओपन है। और एज क्राइटेरिया है आपके लिए 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक, बोथ डेट्स इंक्लूसिव हैं। और एजुकेशन ब्रांच में ही सेकंड पार्ट आपका आ जाता है, जो कि BE और BTech जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, 60% मार्क्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर 60% मार्क्स है MTech में, वो इन 8 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। और यहां पे इंजीनियरिंग ब्रांच में 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी में है आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 तक होना चाहिए। 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 तक। और सेकंड कैटेगरी में 2 जुलाई 1998 से 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 तक होना चाहिए। और इसके बाद टेक्निकल ब्रांच की है बात। इंजीनियरिंग ब्रांच है ये जनरल सर्विसेज में, और इसमें 36 वैकेंसीज हैं, और ये भी अनमैरिड मैन और अनमैरिड वीमेन दोनों जेंडर के लिए ओपन है। डेट क्राइटेरिया है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया 2 जुलाई 2000 से 1 जन 2006 तक। 2 जुलाई 2000 से 1 जन 2006 तक। और
आपकी क्वालिफिकेशन बीई बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, मैरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें जिन्होंने भी बीटेक किया है या बीई किया है और 60% मार्क्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड है टेक्निकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल सर्विसेज के लिए 42 वैकेंसीज हैं, ओपन है अनमैरिड मैन एंड वीमेन के लिए, और 42 से 13 वैकेंसी जो है वो इन मैक्सिमम वीमेन के लिए है। एज क्राइटेरिया है 2 जुलाई 2000 से 1 जन 2006, 2 जुलाई 2000 से 1 जन 2006 तक का। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये डिपेंड करेंगी कि ट्रेनिंग स्लॉट में अवेलेबिलिटी कितनी है, जो कि केरला में ट्रेनिंग होगी नेवी एकेडमी में, एजिमाना केरला में इनका एकेडमी है, जहां पे ट्रेनिंग स्लॉट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो ये उसके हिसाब से अल्टरेशन हो सकती है नंबर ऑफ वैकेंसीज में। और जो सबमरीन आर्म में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अप्लाई करेंगे जनरल सर्विसेज ग्रुप में, इंजीनियरिंग ग्रुप में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में, और उनके लिए बाद में एक अलग से ट्रेनिंग की कंप्लीशन के बाद, ठीक है, ये एडमिसिबल हो सकते हैं सबमरीन आर्म में जाने के लिए, जहां पे कुछ एडिशनल मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहेंगे और कुछ एडिशनल रूल्स रहते हैं। अगर वो उन रूल्स और गाइडलाइंस को पूरा करते हैं और वो मेडिकल फिटनेस के इसमें पूरा उतरते हैं तो वो इस सबमरीन आर्म में जा सकते हैं। जिन्होंने की जनरल सर्विसेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या जनरल सर्विसेज कैडर 1 में अप्लाई किया था। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जिसको आरपीए स्पेशलाइजेशन कहते हैं, जिन्होंने पायलट के लिए कैडर में अप्लाई किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट टू द एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। मर्चेंट नेवी पर्सनल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जिनके पास है, और एज ए सेकंड मेट और मास्टर, ये ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और शिपिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इनके पास है, और उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995, 2 जुलाई 1995 से 1 जन 2006, वो डेट्स इंक्लूसिव, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, मर्चेंट नेवी पर्सनल जो कि नेवी में आना चाहते हैं। और जो इंजीनियरिंग ब्रांच में आना चाहते हैं, तो जो एट प्रेजेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी पोजेस करते हैं फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग का, और किसी स्टीमशिप में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जिनके पास है और जिनका डेट ऑफ बर्थ देखिए 2 जुलाई 1995, 2 जुलाई 1995 से 1 जन 2006 के बीच है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, टेक्निकल ब्रांच। और जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, वो कैंडिडेट्स पायलट इसके लिए एलिजिबल हैं कैडर के लिए। और साथ में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, जिन्होंने सीनियर लेवल कॉलेज तक में एनसीसी किया हुआ है, 5% रिलैक्सेशन है कट ऑफ मार्क्स में उनके लिए, और उसमें एक कंडीशन है कि मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। और साथ में ये सर्टिफिकेट 1 जून 2022 से पहले नहीं होना चाहिए, 1 जून 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, should not be dated prior to 1 जून 2022। अदरवाइज एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले जिनके पास बी ग्रेड है उनके लिए रिलैक्सेशन रहेगा 5% कट ऑफ में।
और जो कि अभी अपने फाइनल ईयर में है, बीई, बीटेक या किसी भी एमएससी में, एमसीए में, जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन का, तो फाइनल सेमेस्टर में जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले अपना फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना है। और कंडीशन रहेगा मिनिमम 60% सारे सेमेस्टर का आपको अपलोड करना है जो प्रीवियस सेमेस्टर्स हैं, और एग्रीगेट आपका 60% अगर नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके लिए जो पायलट के लिए अप्लाई करेंगे, पायलट कैडर के लिए, वो स्पेशली अपना मेडिकल फिटनेस और उनकी हाइट और लेग लेंथ, इनकी हाइट और लेग लेंथ, जिसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगा आपके लिए, ये बहुत जरूरी है। पहले ये फिजिकली स्टैंडर्ड्स को चेक कर लें, क्योंकि इसके लिए बहुत अलग से और टिपिकल नॉर्म्स हैं, पहले चेक कर लें फिर ही अप्लाई करें। अदरवाइज किसी और कैडर में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वंस यू हैव अप्लाइड फॉर सम पर्टिकुलर कैडर, इट विल नॉट बी अमेंडेड, इट कैनॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट। वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जिस कैडर के लिए आपने अप्लाई कर दिया है वो फाइनल है, बाद में चेंज नहीं होगा। इसलिए पहले देख लें, जो पायलट के लिए जाना चाहते हैं अपना फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को चेक कर लें। और यहां पायलट के लिए अलग से अलाउंस भी है 31,250 आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। इसके साथ जहां पे आपका मेडिकल टेस्ट होना है उन हॉस्पिटल्स को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन भी इन्हीं हॉस्पिटल्स के थ्रू होगी। और जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसका इनिशियल टेन्योर है 10 इयर्स का। आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बीच में आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जो प्रोबेशन रहता है उसके बीच में भी आप इसको छोड़ नहीं सकते। अदरवाइज आपको जितनी पे या अलाउंस दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको रिफंड करने पड़ते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। और इसके साथ ही आपको बीच में, ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के बीच में आपको मैरिज भी नहीं करना है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस ट्रेनिंग के लिए। आपको बीच में कभी भी ट्रेनिंग कोर्स से बाहर किया जा सकता है। और एक और, आपको किसी भी ड्रग्स का हैबिट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टेस्ट होते हैं इसके लिए। और बिफोर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इवन ड्यूरिंग प्रोबेशन और आफ्टर प्रोबेशन आपका ओवर हो जाता है और कंफर्म हो जाती है सर्विसेज, तब भी आपको इसका कोई हैबिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी वक्त आपको इसके लिए डिबार कर दिया जाएगा, आपकी सर्विसेज को एंड कर दिया जाएगा। और आपकी जो इंडक्शन रहेगी ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, वो रहेगी सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, जिसके लिए अलाउंस है 56,100। और जिनका एप्लीकेशन, जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिनका एप्लीकेशन सही तरह से पढ़ा नहीं जाएगा, ब्लर होगा या कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और एक और चीज है, जो पहली बार इस शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए AC 3 टियर का जो फेयर है वो भी दिया जाता है। उसके लिए आप एक इनका जो टिकट है और परफॉर्मा है उसको फिल करेंगे और वो आपको रियम्बर्स हो जाएगा। तो आपको सारे 10th के सर्टिफिकेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वही इस फॉर्म में रखनी है। 10th की जो कॉपी है उसके सारे मार्क्स वो इसमें लगेंगे, वो आप रेडी रखें। कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ रेडी रखें ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने से पहले। +2 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर्स के जो भी आपने BE, BTech या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो सारे सर्टिफिकेट्स को आपको रेडी रखना है। ये सारे के सारे अपलोड होंगे इसमें।
और अगर सीजीपीए में है तो परसेंटेज में मिनिमम 60% है, तो कन्वर्शन फॉर्मूला लगा के आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि वो मिनिमम 60% में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो अगेन ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इन आवर डिस्क्रिप्शन। फिर से कौन कौन सी पोस्ट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, उनका डेट ऑफ बर्थ, वीमेन के लिए कितनी पोस्ट हैं और बाकी टोटल कितनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी। और साथ ही इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगला वीडियो जो आ रहा है उसमें हम बताएंगे आपको लगभग 15,000 पोस्ट, 15,000 पोस्ट निकली हैं आपके मिलिट्री में, इंडियन मिलिट्री में, और आईटीबीपी में भी कुछ पोस्ट निकली हैं जो कि कांस्टेबल या ड्राइवर्स के लिए हैं। वो दोनों के लिए ही वीडियो बस अब थोड़े ही देर में दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे हम, जिसमें कि आईटीबीपी में जो कांस्टेबल ड्राइवर्स की पोस्ट निकली हैं या ऑफिसर्स की पोस्ट हैं इंडियन आर्मी में, और कुछ 15,000 के आसपास पोस्ट हैं जनरल सर्विसेज में, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसीज हैं, इन टोटल 15,000। सो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें अपडेट रहने के लिए। थैंक यू सो मच।